नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इससे पूर्व हमने भूकंप की सामान्य जानकारी इससे पूर्व के अध्याय में ली थी। अब इसके आगे हम इस अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक सीस्मिक वेव्स आर जनरेटेड विच स्प्रेड आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस। सीस्मिक वेव्स आर जनरली ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है पी वेव्स, दूसरा है एस वेव्स और तीसरा है सरफेस वेव्स और एल वेव्स। सरफेस वेव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक while the main significance of P and S wave is in study of Earth's interior. P and S waves travel through the interior of the Earth and are reflected and refracted as they enter a layer of different material. P waves. These are also called primary waves. These are compressional waves which cause the particles of rock to vibrate in the longitudinal direction. The P waves travel fastest, therefore they reach a seismic station fast. Their velocity is 1.7 times than that of S waves. They pass through solids as well as liquids. इसके पश्चात आती है S waves. These waves are also called secondary waves. These are shear waves which are transverse in nature. Their velocity is less than the P waves. The S waves travel through solids only and do not pass through liquids. इसके पश्चात आता है L waves और surface waves. These are also called surface waves. When P and S waves reach the Earth's surface, they are converted into L waves. The L waves travel along the surface and cause earthquake. They are also transverse in nature and their velocity is much less than P and S waves. अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे भूकंपों का। गहराई के आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन फर्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन देयर मोड ऑफ ओरिजिन द अर्थक्वेक आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला, अर्थक्वेक्स ड्यू टू सरफेस कॉजेज। अर्थक्वेक मे बी जनरेटेड बाय लैंडस्लिप्स एंड कोलैप्स ऑफ द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड caverns. Most of these are very minor. दूसरा है earthquakes due to volcanic causes. Volcanic eruptions may also produce earthquakes, but such earthquakes are generally very feeble. तीसरा, earthquakes due to tectonic causes. Tectonic earthquakes are the most numerous and usually the most disastrous. They are caused by shocks which originate in the Earth's crust due to sudden movement along faults. इसके पश्चात इसका दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। On the basis of depth of the focus, the earthquakes are divided into following groups. पहला है shallow focus earthquakes. Earthquakes having depth of focus up to 55 किलोमीटर। यहाँ भूकंप के उद्गम केंद्र की गहराई 55 किलोमीटर तक होती है। दूसरा है intermediate focus earthquakes. Earthquakes having depth of focus between 55 to 300 किलोमीटर। यहाँ भूकंप केंद्र की गहराई 55 से 300 किलोमीटर तक होती है। ये इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक हैं। इसके पश्चात आते हैं डीप फोकस अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स हैविंग डेप्थ ऑफ फोकस बिटवीन 300 to 600 किलोमीटर।
यहाँ भूकंप केंद्र की गहराई 300 से 600 किलोमीटर तक होती है। The shallow earthquakes are more violent at the surface but affect a smaller area than deeper earthquakes. इसके पश्चात देखते हैं origin of earthquakes. Tectonic earthquakes are the most common and therefore the most important. The forces that cause tectonic earthquakes are the same which cause faulting and produce mountains on the earth's surface. The possible mechanism of tectonic earthquakes can be explained by elastic rebound theory. इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के द्वारा हम ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक्स दर्शा सकते हैं। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी देखते हैं। द मेन पॉइंट्स ऑफ इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी आर एज फॉलोज। इन सर्टेन जोन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट द स्ट्रेस एक्यूमुलेट ग्रेजुअली इन रॉक masses. When the stress exceeds the elastic limit of rocks, they bend and crack. The slippage along the fracture is initially prevented by friction. Under these conditions, the rocks will store up energy as elastic strain. Some slight movement along the fracture plane produce force shocks. When the strain reaches a critical point, the friction is overcome and slippage takes place. The fractured blocks snap back to its original shape, thereby releasing the stored up energy in the form of earthquake by vibrating back and forth. The springing back of the rock is called elastic rebound. Some adjustments along the fault zone after the main earthquakes produce after shock. ये इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के बारे में साधारण जानकारी है। इसके बाद हम देखेंगे भूकंपों की तीव्रता एवं उसके परिणाम के बारे में जानेंगे। धरातल पर घटित ध्वंस की भीषण तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के आधार पर भूकंपों की तीव्रता का अनुमान लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम 1883 में एमएस रोसी और एफए फोरेल ने इटली और स्विट्जरलैंड के भूकंपों के प्रभावों का अध्ययन कर एक 10 मान वाला तीव्रता माप प्रस्तावित किया। इसके बाद जी मरकाली ने एक अन्य पैमाना बनाया। सन 1931 में H.O. वुड एवं F. न्यूमैन ने उसे संशोधित किया। रोसी फोरेल के सामान्य विशेषताओं के साथ 12 माप वाला या तीव्रता मापक्रम इस प्रकार है। तीव्रता प्रघात, भूसतह पर उत्पन्न त्वरण और धरातल पर इसका प्रभाव हम देखेंगे। पहला है इंस्ट्रूमेंटल, इसका त्वरण है 10 से कम और इसका धरातल पर प्रभाव क्या होगा, भूकंप लेखी द्वारा ही भूकंप का साधारणतः पता चलता है। दूसरा है अति क्षीण यानी वेरी फीबल, इसका त्वरण है 10 से 25 और इसका इफेक्ट क्या है, घर के भीतर भवनों के ऊपरी मरातमों में भूकंप का पता चलता है। तीसरा है क्षीण यानी फीबल, इसका त्वरण है 25 से 50 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका प्रभाव है मोटर के गुजरने से होने वाले कंपन की तरह हलचल, विरामरत व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है। चौथा है साधारण यानी कि मॉडरेट, इसका त्वरण है 50 से 100 मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका प्रभाव है घर के अंदर रखे बर्तन खनखनाने लगते हैं, खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगते हैं, खड़ी हुई मोटर गाड़ियां हिलने लगती है और गतिशील व्यक्तियों द्वारा भी अनुभव किया जा सकता है।
इसके पश्चात है साधारण प्रबल यानी कि फेयरली स्ट्रॉन्ग। इसका त्वरण है 100 से 250 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें प्रभाव क्या होता है? सोते हुए लोग जग जाते हैं, सभी लोग अनुभव करते हैं, खिड़कियां इत्यादि टूट जाती हैं, अस्थिर पदार्थ लुढ़क जाते हैं, पेड़ और खंभे झुक जाते हैं। इसके बाद छठा है प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग। इसका त्वरण मान है 250 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सभी जन महसूस करते हैं। कुछ लोग भयक्रांत और घर से बाहर भागते हैं, घरों की चिमनियां टूट जाती हैं और प्लास्टर भी उखड़ जाते हैं। इसके पश्चात सातवां आता है अति प्रबल या प्रचंड यानी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका त्वरण मान है 500 से 1000। लोग घरों से बाहर भागते हैं, मोटर गाड़ी चलाते हुए लोगों को भी झटकों का आभास होता है, दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं, सामान्य डिजाइन के भवनों में बहुत क्षति होती है। इसके पश्चात है विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। इसका त्वरण मान है 1000 से 2500 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका धरातल पर प्रभाव है चिमनियां गिर जाती है, सामान्य इमारतें ढहने लगती है, भूमिगत जल में भी परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात नौवां है विध्वंसकारी। यह 2500 से 5000 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। विशेष डिजाइन वाली इमारतें भी टूट जाती है, नींव हिल जाती है, पाइप फट जाते हैं और धरती में इससे दरारें पड़ जाती है। यह रूनस विध्वंसकारी था। इसके पश्चात 10वां है महाभयंकर यानी डिजास्टर्स। इसमें त्वरण मान है 5000 से 7500 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लकड़ी के भवनों को भी इसमें क्षति पहुंचती है एवं पुल टूट जाते हैं, रेल की पटरियां ध्वस्त हो जाती है, तब भूस्खलन होते हैं। इसके पश्चात है प्रलयंकारी यानी वेरी डिजास्टर्स। 7500 से 9800 मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण मान है। सभी इमारतें, पुल या अन्य सभी निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाते हैं, जमीन में चौड़ी दरारें पड़ जाती है, भूस्खलन होते हैं तथा रेलें मुड़ जाती हैं। इसके पश्चात है सर्वनाशकारी। इसका त्वरण मान है 9800 से अधिक या सर्वाधिक भयंकर। इसका धरातल पर प्रभाव है समस्त निर्माण कार्य नष्ट हो जाते हैं, चीज़ें हवा में उछल जाती हैं, जमीन विकृत हो जाती है और हिलती हुई दिखती है। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरा स्केल रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में क्या होता है? द अर्थक्वेक इंटेंसिटी स्केल वाज डिवाइस्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर, एन अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन सीस्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये रिक्टर स्केल बनाया। इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। दिस एनर्जी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। The magnitude is calculated mathematically using the amount and duration of ground vibration as recorded by seismograph। इसमें रिक्टर स्केल में मैग्नीट्यूड और इफेक्ट्स देखते हैं। पहला मैग्नीट्यूड है 2.5। इसमें इफेक्ट होता है जनरली नॉट फेल्ट बट रिकॉर्डेड। दूसरा मैग्नीट्यूड है 4.5। इसमें इफेक्ट है लोकल डैमेज। तीसरा मैग्नीट्यूड है 6.0। इसमें इफेक्ट है कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन पॉपुलस रीजन, यानी आबादी क्षेत्रों में नुकसानदायी होता है। चौथा मैग्नीट्यूड है 7.0। इसका इफेक्ट है मेजर अर्थक्वेक्स इन्फ्लिक्ट सीरियस डैमेज। और छठा है मोर देन 8। इसका इफेक्ट है ग्रेट अर्थक्वेक कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन। द रिक्टर स्केल इज वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक और दिस स्केल इज लॉगरिथम स्केल। इसके पश्चात पृथ्वी और भारत के भूकंप क्षेत्रों का हम देखते हैं। पृथ्वी के किसी भाग में भूकंप का प्रकोप हो सकता है।
लेकिन 95% भूकंप पृथ्वी के विशेषतर 2 ही कटिबंधों में हुए हैं। ये कटिबंध ज्वालामुखी कटिबंध भी है, परिप्रशांत कटिबंध और भूमध्य भूकंपी कटिबंध के अतिरिक्त मध्य अटलांटिक तटस्थ क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका की रिक्त घाटी तथा प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र इसमें उल्लेखनीय हैं। यानी सरकम पैसिफिक बेल्ट और मेडिटेरेनियन सीस्मिक बेल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविनेंस है भूकंपों के, भूकंप उत्पत्ति इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। भारत में असम से कश्मीर तक फैला हुआ हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भूकंप का प्रधान क्षेत्र है। असम में 1897 और 1950 में 2 बार भयंकर भूकंप भी आ चुके हैं। पश्चिमी तट के गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में भी भूकंप की संभावनाएं अधिक रहती है। 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप की तीव्रता 7 से 8 की रही, जिसके कारण अहमदाबाद तक में कई मकान धराशायी हो गए एवं जनधन की अपार क्षति हुई। इसी प्रकार 11 दिसंबर 1977 को कोयना में घटित भूकंप से दक्षिण भारत के भूकंप मुक्त होने का संदेह किया जाने लगा है। भूकंपों का पूर्वानुमान तथा उससे बचाव। भूकंप पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के सतही परिणाम है, अतः उनको घटित होने से रोका नहीं जा सकता। उनका पूर्वानुमान कर क्षति अवश्य कम की जा सकती है। भूकंप के 24 घंटे पहले चुंबकीय आंधियां आती है, ज्वालामुखी से निष्कासित गैसों की मात्रा में आकस्मिक बढ़ोतरी होती है। प्राय भूकंप शरद एवं शीत ऋतु में पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं। भूकंप का प्रभाव कम करने के लिए विशेष प्रकार की भवन निर्माण कला विकसित हुई है। भूकंपरोधी भवन निर्मित किए जाते हैं। इसमें यह भवन लकड़ी या प्रबलित सीमेंटेड के छोटे आकार के भवन होते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट के बने होते हैं। इसमें ईंट और मिट्टी का बहुत कम प्रयोग होता है। सामान्य भवनों की अपेक्षा यह भवन अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, इलास्टिक होते हैं। इस प्रकार यह भूकंप का दूसरा पार्ट हमने कंप्लीट किया।